आमची मातृभूमी आहे, पण मनापासून एक बरं वाटतं की आपली चालना चांगल्या दिशेने चाललेली आहे. वी आर मूव्हिंग इन द राईट डायरेक्शन. And as the chairman of the Pollution Control Board, obviously there is a big onus on us, along with the state government and the central government as well, that we want to achieve something what is still not been done. There are a lot of initiatives which are still in pipeline and we're working. But to all my dignitaries and all my friends, I would like to mention this one thing, that Maharashtra was the first state to impose single-use plastic ban, and I would proudly say the initiative was taken up by my father, as everybody knows, Mr. Ramdas Kadam, when he was the then Environment Minister. And the person who drafted the policy is sitting with us, Mr. Nandakumar Guravji. He is the one who drafted that policy. So we've come a long way. There is no ifs and buts about it. We are exhausting our resources, that is true. आपण आपले रिसोर्सेस दिवसेंदिवस कमी होत चाललेले आहेत. आपण आपल्या जगामध्ये काय घडतंय ते थोडं, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काय घडतंय, व्हॉट इज हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वी बीन विटनेसिंग दॅट. Like this year, I don't think so. All of us sitting here, we've never seen monsoon for 6 months. Monsoon started in the month of May and it ended in November. So out of 12 months, 6 months is monsoon. Two months of dry season and 1 or 2 months of winter. So this is actually climate change happening in front of our eyes. Not even the elderly who are here, जे तरुण आहेत, जे वृद्ध सुद्धा आहेत, त्यांनी सुद्धा पाहिलं असेल की त्यांच्या जीवनामध्ये कधी 6-6 महिन्याचा पावसाळा नव्हता. Tahir, I would like to mention one thing. Over the period of time, I've never heard about the entire soil being, I've heard about soil being getting eroded. The soil getting washed off. There is no soil in the farmland. And we have to import soil from other states. We have to get soil from other states to donate to the farmers. We have never seen that state in the state of Maharashtra as of now. ही काळाची गरज आहे. दॅट इज व्हॉट इज हॅपनिंग राईट नाव. म्हणजे हे खरं तर होतं आहे, इट इज हॅपनिंग. दॅट इज बाय सच एक्झिबिशन दे गिव्ह ऑपॉर्च्युनिटी. आय ऑल्सो एम्फसाइज ऑन वन थिंग इन एव्हरी की नोट व्हॉट आय गेव इज दी अपॉर्च्युनिटीज व्हॉट आर देयर फॉर द यूथ. इफ यू ट्रॅव्हल अक्रॉस द स्टेट, आप ट्रॅव्हल अक्रॉस द स्टेट. मी महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक भागात गेलो, विदर्भ, मराठवाडा, कोकणात सगळीकडे गेलो. आय ट्रॅव्हल अक्रॉस द स्टेट. There is a lot of youth who still don't know what to do. They are still lost, but they are skilled. They have talent, they have knowledge, they have everything. But when such exhibitions they come, so they get to know that there are opportunities other than the usual business activities what they can carry as well. That is why through the board we are coming up with a campaign wherein the associations like yours, रिसाइकलिंग एसोसिएशन का दूसरा पड़ाव यहाँ पर आज आपने देखा है. आपको पता है कि आज की तारीख में रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जग में, छोड़ो हमारे देश में और हमारे स्टेट में. आज वातावरण में क्या बदल हो रहा है हम सब देख रहे हैं. तो और रिसाइकलिंग ही फ्यूचर है. आज रिसाइकलिंग से ही
जो आगे की जो जनरेशन है उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यहाँ पर जितने भी रिसाइकलर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने एक सिर्फ स्टेट को ही नहीं तो देश को भी एक दिशा देने का काम ऐसे एग्जीबिशंस करते हैं। तो मैं PRS इंडिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा एक एग्जीबिशन इन्होंने मुंबई में किया है। और मेरी उनसे एक ही दरख्वास्त थी कि सिर्फ मुंबई में ना रुके, ये महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे ऐसे एग्जीबिशंस करें और इसमें MPCB और PRS इस साथ में जुड़ के ये चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल एक प्राइवेट एसोसिएशन और एक गवर्नमेंट बॉडी और पब्लिक जब तक ये साथ में नहीं आते तब तक हमको ज़मीन को उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं। इसलिए ये एसोसिएशन, ये कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ पर PRS इंडिया और उसी तरह से यहाँ पे इंटरनेशनल डिग्निटरीज भी हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो भी रिसाइकलिंग के नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है हमें आज यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। तो वापस से पुन्हा एकदा मी PRS इंडिया आणि त्यांचे सगळ्या पदाधिकारी, त्यांचे सगळे जे टीम आहे त्यांचं मनापासून मी धन्यवाद व्यक्त करतो। मैं अलग से सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो हमारे शो में आए और हमारे शो को उन्हें इनाग्रेट किया। आज 13-15 नवंबर में यहाँ पे 3 एग्जीबिशन हो रहे हैं। वन इज़ द प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो विच इज़ हैपनिंग फॉर द सेकेंड टाइम। ये क्लोज टू अराउंड 100+ exhibitors. We also have the UTEX show which is focusing on foam and polyethylene, which is organized by Green Communications, my partner, and Media Fusion. So in total 150 companies participate कर रही हैं। बहुत यूनिक चीज़ इस बार है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो के साथ हमने भारत रिसाइकलिंग शो शुरू किया है, जहाँ पे हम अलग अलग क्वालिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। पेपर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, टायर, ऑयल, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन वेस्ट, उसमें हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस सेशन है जहाँ पे क्लोज टू 200+ स्पीकर्स अक्रॉस द 3 days यहाँ पे अपने नॉलेज शेयर करेंगे। एंड दिस शो लाइक सर सेड इज नॉट ओनली फॉर companies who are working in the business, but also for investors who want to invest in the business and the youth who want to start up something over here, right? हमारे यहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है and these are opportunities where two minds come together and they form they can invest and start business, and the government is ready to support over here. Organizations like us are ready to create platforms where anybody can get out. कदम साहब ने कहा इन्वायरमेंट का बदल रहा है, तो ऐसे सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा प्रकृति को संभालने के लिए, उसका वातावरण और स्वच्छ बहुत हद तक मिलेगा। अगर वेस्ट जो रिसाइकिल होगा या रिड्यूस होगा तो उससे जो है वो एनवायरमेंट के अंदर वो वापस जाएगा ही नहीं, लैंडफिल में जाएगा ही। अगर वो लैंडफिल में नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें एनवायरमेंट को कार्बन ऑफसेटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे ब्रांड्स आने वाले हैं पैकेजिंग कंपनीज, उनका भी एक बार तो मोटिव नहीं है बिजनेस के अंदर किस तरीके से रिसाइकिल मटीरियल यूज़ करें ताकि उसका वातावरण पे बहुत कम हो। कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और मुझे ये बोलना है पहले कि ये जो रिसाइकलिंग है ना, ये रिसाइकलिंग एक मूवमेंट बन रही है धीरे धीरे। जैसे होता है ना, ये दूसरा एडिशन है, तो ये रिसाइकलिंग का एक मूवमेंट जो बन रही है और उसको आगे लेके जाना ज़रूरी है। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि हमको वेस्ट नहीं देखना है, वेस्ट की जगह में उसको वेल्थ कैसे कन्वर्ट किया जाए वो देखना है। और इधर जो एग्जिबिटर्स आए हुए हैं तो इधर तो जैसे होता है ना, रिसाइकल करके हमें उसमें से कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली प्लास्टिक, देयर इज सम BRS शो इज ऑल्सो गोइंग ऑन। बहुत से यू कैन सी दैट ई वेस्ट, उसका भी रिसाइकलिंग का डिस्कशन हो रहा है। और द बेस्ट थिंग इज व्हाट कि अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर शो वो लोगों ने 3 कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए हुए, वेयर बाकी सब टेक्निकल एक्सपर्ट, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, वो सब आके अपने अपना व्यूज़ शेयर करेंगे।
एंड दैट विल डेफिनेटली इट विल ऐड टू द नॉलेज पार्ट। सी हम लोग इधर बैठे हुए इधर कल एक लीडर्स फोरम होने वाला है, तो ये लीडर्स फोरम में अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज़ के लीडर आके दे विल टॉक अबाउट दी व्हाट आर द रिसाइकलिंग ऑप्शंस, व्हाट आर द रिसाइकलिंग चैलेंजेस एंड व्हाट आवर पॉसिबिलिटीज, हाउ वी कैन टेक रिसाइकलिंग अहेड। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 दिन जो ये शो बनने जा रहा है और ये कुछ डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक कॉन्क्रीट स्टेप ले रहा है, और उसकी वजह से जिसमें मैंने मेरे इनॉग्रल सेशन में भी बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत 2047, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बाजू में करके वो नहीं पॉसिबल है। और माननीय चेयरमैन सर ने भी बोला था कि इट इज़ नॉट ओनली रिसाइकलिंग इन से केवल प्लास्टिक, बाकी सब जैसे बोला ना मानसून की बात की हमने, हीट वेव्स की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, ये सब आस्पेक्ट इट इज़ कनेक्टेड विद सब ये सब एनवायरनमेंट से कनेक्टेड आस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि ताहिर एंड उसकी टीम इन्होंने जो कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं, रियली वी शुड अप्रिशिएट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स हम लोग उनको ज़रूर देंगे फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एज अ रिसर्च एक्टिविटीज। एंड तो मुझे देख रहा हूँ कि छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज़ में लोग उसमें इंटरेस्ट है, तो जैसे चेयरमैन सर ने बोला कि उनको कुछ तो सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली ये जो सपोर्ट ये शो जो है वो PRS के माध्यम से, PRS से माध्यम से सभी महाराष्ट्र के छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी मिलेगा। विद दिस आई थैंक्स वंस अगेन, धन्यवाद। आज संजय गुप्ता कैंडिडेट इंडियन इंडियन एसोसिएशन मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ, और ताहर साहब को PRS और इसमें मुझे टॉपिक दिया गया है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर पोस्ट किया है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मेनली मैं इंजीनियर सेक्टर से हूँ और उसके ऊपर मैं सेकेंड मुझे टॉपिक दिया गया है कैसे कैसे कर रहे हैं, इतना आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नीति आयोग को सजेशन दिया, वो भी मैं आज यहाँ पर इस सेक्टर में ज़्यादातर लोग असंगठित जो ऑर्गेनाइज देश के अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादातर रिसाइकलिंग हो रहा है। प्रॉब्लम इज दैट इट इज इन द पैरेलल इंडस्ट्री एंड बिकॉज द गवर्नमेंट हैज वोकन अप टू रिसाइकलिंग वेरी लेट। आज अगर आप नॉन मेटल है या प्लास्टिक्स है तो 60-70 सालों से रिसाइकलिंग चालू है, खाली अपने पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है। तो जो डेटा की बात की वो डेटा बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग के जब उसको लीगलाइज करेंगे तो जो एनवायरमेंटल वायलेशंस हैं जिसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज, आज प्लास्टिक जल रहा है, तो उससे पूरा देश में पूरा एरिया में देयर आर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड। तो जब ये लीगलाइज होगा तब अपने आप ये कम होते जाएगा। अब ये लीगलाइज होने के लिए अवेयरनेस, अब ये जैसे ये भारत रिसाइकलिंग शो बनाया है तो शोज़ के द्वारा एक इंटरेक्शन होगा जहाँ गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड द एकेडमिक्स विल सिट टुगेदर एंड उसका रास्ता निकालेंगे कि इस जो कलेक्शन हो रहा है, जो पैरेलल इंडस्ट्री में रिसाइकलिंग हो रहा है, उसको कैसे लीगलाइज किया जाए। जिस दिन ये लीगलाइज हो गया उस दिन काफ़ी हद तक इसके जो प्रॉब्लम्स है और एनवायरमेंटल वायलेशंस कम हो जाए। मेरा नाम सुमित कुमार है, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूँ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, CBIC में महाराष्ट्र हेड हूँ। इस इवेंट में हमें इन्वाइट किया गया। भारत सरकार की इच्छा है कि हम जो व्यापार में लोग हैं और जो इकोसिस्टम में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन हो या जो पार्टिसिपेंट्स हो, उनकी बात हम सुने। भारत सरकार का कहना है कि भारत सरकार आपके द्वार, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पास आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमें जो दायित्व दिया गया है वो आपका जो ग्रीवांसेस हैं, आपके इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, चाहे वो कस्टम्स हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो या GST हो या रिलेटेड मैटर्स हो, उसके लिए हम यहाँ उसके लिए हम मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रेड्स का कितने बार डिमांड रहता है
कि जब कानून बदलता है या नया लॉ आता है, रेगुलेशन आता है, तो आप हमें उसको समझाइए, उसको ज़रा हमारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो टैक्स पेयर एजुकेशन बोलते हैं, करदाता के लिए जो हम लोग करते हैं, तो ऑन डिमांड हम लोग वो भी करते हैं। इसके अलावा आपसे डील करना, मीडिया से और पब्लिक से डील करना, वो भी हमारा दायित्व है। तो हमारा जो महाराष्ट्र का यूनिट है, वो महाराष्ट्र गोवा को कवर करता है, तो हम लोग रीच आउट करते हैं, हम लोग वेरियस ट्रेड बॉडीज़ को रीच आउट करते हैं। तो ये इवेंट जो है उसी में है, और हम चाहते हैं, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और GST से इनका बड़ा इन पर इफेक्ट होता है। अगर पॉलिसी वगैरह चेंज करते हैं तो इनके क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ इनको तकलीफ है, कहाँ ये चेंजेस चाहते हैं, चाहे वो फील्ड लेवल हो या वो पॉलिसी लेवल हो। फील्ड लेवल पर तो हम डायरेक्टली उससे डील कर लेते हैं, फील्ड फॉर्मेशन से बात करके उनका समाधान निकालते हैं, और जो पॉलिसी लेवल है उनकी इंडस्ट्री की बात सुन के उसको समझ के उसको हम लोग आगे फिर मंत्रालय को, भारत सरकार को भेजते हैं। और भारत सरकार निरंतर, अभी जैसे GST 2 आया था, कस्टम्स में भी काफ़ी रिफॉर्म आया था, उसके बाद काफ़ी जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है, और जो बाकी जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ तत्पर रहते हैं। उस मिशन के लिए इस तरह का इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें खुशी है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया, और जो भी कल भी हम लोग को बोला गया है कि राउंड टेबल में GST रिलेटेड इश्यूज़ पर कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह देने के लिए वो हम करेंगे, और सभी की बात सुने। सम शॉर्ट यही व्यापारियों ने अभी बातचीत हुआ है, तो हमने उनको बोला है कि आप हमें विज्ञापन में हमसे आप संपर्क में रहें, हम आपके संपर्क में रहेंगे, और आपका जो इश्यूज़ है, कंसर्न्स हैं, वो हम समझेंगे। आप हमें जो देना चाहें हम दीजिए, और अगर वो क्लैरिटी है, इतना बार है कि सरकार के लॉ के चेंजेस या पॉलिसी चेंजेस को वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनके लिए इवेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट हम लोग लाएंगे, एक्सपर्ट से उनके जितने उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। दूसरा है कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं इसमें उनको कोई तकलीफ है, चाहे नया हो या पुराना हो, वो भी हम समझ के उस पर हम उनसे फीडबैक लेके हम फिर अगर फील्ड लेवल प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर मंत्रालय में। Good afternoon, everybody. I am Joseph Patil, Joint Director and Directorate General of Taxpayer Services, Mumbai Center. Firstly, I'd like to thank the organizing committee for inviting us to the event. Recycling and circular economy is a pressing need of the day. As the Honorable Chairman of NTCB has also mentioned, I think climate change is something that today we are experiencing. It is no more in textbooks and research papers, but it is our lived experience through this monsoon as well. And we are representing the Ministry of Finance and the government, especially customs and GST. We are devising policies and we want to develop whatever support we can for the recycling industry. Even in the recent GST 2.0 reforms, Government of India has taken steps towards supporting recycling and circular economy, and it is in that spirit and in that endeavor that we believe that we will go forward and support this particular industry even more. अभिनंदन करता हूँ, ऐसे वो काम करते रहें। ये बियॉन्ड एग्जीबिशन उनका जो कंसेप्ट जा रहा है, उसमें बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। इंडस्ट्री एक अलग दिशा में जा रहा है, इन द सेंस वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। थैंक यू, स्पेशली थैंक तारिक फॉर इन्वाइटिंग मी एंड taking part of this conference as well as this exhibition. Thank you. का इवेंट जो है 3 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन है। हमारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो इंडिया है, भारत रिसाइकलिंग शो है, और यूटेक इंडिया सस्टेनेबल पॉलीयूथिन एंड फ्लोर एक्सपो है। ये तीनों शोज ऐसे मंच पे खड़ा कर दिया हम लोगों ने, जिसपे
लिए हमारा एक ही एम है टू फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी, ब्रिंग सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइकलिंग ऑन प्लेटफॉर्म। अगर आप देखे जाए तो यूटेक का जो इवेंट है वो भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। यहाँ पे हम रिसाइकलिंग की बातें करते हैं, यहाँ पे हम कैस्टर ऑयल को पॉलीऑयल को यूज़ करने के लिए कैसे कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं, हम लेटेक्स फोम की बात कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज अक्रॉस ऑल द 3 शोज आर अबाउट सस्टेनेबिलिटी। रिसाइकलिंग तो है ही सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो वर्ल्ड ओवर बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है और हम लास्ट ईयर उसको इंडिया लेके आए थे और लास्ट ईयर का शो इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमको लगा कि भारत रिसाइकलिंग शो में बाकी की कमोडिटीज़ भी हम लेके आए। तो हमारे पास प्लास्टिक्स के साथ हम मेटल्स, पेपर, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, वुड, टेक्सटाइल, टायर की भी बात कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो हमारे इतने सारे एसोसिएशंस ने सपोर्ट किया हुआ है, भले वो APR भारत हो पेट रिसाइकलिंग के लिए या इंडियन प्लास्टिक्स इंस्टीट्यूट हो या फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हो या यूटेक में हमारे पास सस्टेनेबल कैस्टर एसोसिएशन है, इस्पोमा है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये सब एसोसिएशन ने हमको सपोर्ट किया है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हमको सपोर्ट किया है क्योंकि उनको पता है कि दीज आर द प्लेटफॉर्म दैट विल टेक दीज इंडस्ट्रीज फॉरवर्ड। हमारा विजन है कि भारत रिसाइकलिंग और प्लास्टिक रिसाइकलिंग को इंडिया के सबसे बड़े रिसाइकलिंग शोज बनाने का विजन है। ये हमारा बहुत क्लियर कट फोकस है। वो लोग देखेंगे और बिजनेस करेंगे। साथ में हमारा PRS इंडिया अवार्ड्स है, हमारा भारत रिसाइकलिंग और यूटेक में हमारा फेलिसिटेशन तो है ही चैम्पियंस के। एंड ओवरऑल 3 दिन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करोड़ों का बिजनेस हो और उस बेसिस पे हम ये पूरे प्लेटफॉर्म्स को और भी बड़ा करें नेक्स्ट ईयर एंड वी वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट ईयर। अगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो और भारत रिसाइकलिंग शो की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। दे वांट टू वर्क विद अस क्लोजली बिकॉज वो देखते हैं कि मुंबई में हम ये इवेंट कर रहे हैं तो व्हाट आर वी डूइंग फॉर द महाराष्ट्र और गुजरात महाराष्ट्र मार्केट स्पेसिफिकली वो उनको दिख रहा है। हमको सपोर्ट मिला है मेक इन इंडिया से, हमको सपोर्ट मिला है MSME से, हमको सपोर्ट मिला है BMC से फ्रॉम मुंबई, हमको डिजिटल इंडिया और मेटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिला है भारत रिसाइकलिंग के लिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट।